Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and today we will start our new chapter, that is metals and non-metals, and the topic for this session is physical and chemical properties of metals and non-metals. As in the lower classes we have discussed about the properties of metals and non-metals on physical basis, that is on the basis of their appearance. Let us revise them one by one. We know that metals are hard, lustrous, that is they have their own shine. They are sonorous, that is जब भी हम उन्हें किसी hard substance से strike करते हैं तो they produce a ringing sound like in a bell. This property is called sonorosity. So metals are sonorous. They are good conductors of heat and electricity. That means electricity can pass through metals. Also heat can also transmit it from one end of the metal to another. They are malleable. Malleable means that if we beat metals, they can be formed into thin sheets. For example, aluminium sheets and silver sheets. They are ductile. That is, if we melt and stretch the metals, they can be drawn into wires. As we have seen copper wires, so metals are usually ductile. Also, they have high melting points. Because metals are very hard and rigid, therefore they have very high melting points, that is बहुत high temperature के बाद ही metals melt होते हैं. They do not easily melt if kept somewhere at the normal temperatures. On contrary, non-metals are soft, they are non-lustrous, non-sonorous, and they are insulators of both heat and electricity. That means neither heat nor electricity can pass through non-metals. They are non-malleable and non-ductile. Now these are the general physical properties of metals and non-metals, but there are some exceptions to these properties. For example, mercury. Mercury is a metal but still it is liquid at room temperature, jabki most of the metals are hard solids at room temperature. Also gallium and cesium have low melting points. Usually metals have high melting point, but gallium and cesium metals have low melting points. We have seen that non-metals are soft, but diamond, which is actually chemically carbon, so diamond or carbon, it is the hardest material which is present on the earth. And also we know that diamond shines, that is it has luster. Graphite, again it is a form of carbon, and graphite is a good conductor of electricity, jabki most of the non-metals are insulators of electricity. Now sodium and potassium are metals, and metals are usually hard, but sodium and potassium are so soft that they can even be cut with a knife. So these are some exceptions to the physical properties of metals and non-metals. Now moving on to the chemical properties, we have seen that most of the metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. Now let us see the reaction of metals in air. From air we particularly means the reaction of metal with oxygen. Air में oxygen gas present है, तो जब भी हम air बोलते हैं that means हम oxygen के साथ reaction को study कर रहे हैं. For example, metals usually oxygen यानी कि air के साथ react करते हैं to form metal oxide. For example, copper reacts with oxygen to form copper oxide. Now similarly aluminium reacts with oxygen to form aluminium oxide. हमने देखा है कि metallic oxides are basic in nature, but some metallic oxides can be both acidic as well as basic. तो ऐसे metallic oxides जो acidic भी behave करते हैं और basic भी behave करते हैं, those are called as amphoteric oxides. For example, this aluminium oxide is amphoteric. अब जो substance acidic और basic दोनों होगा वो acid के साथ भी react करेगा because of the basic properties, और वो base के साथ भी react करेगा because of the acidic properties. Let us look here. Aluminium oxide can react with HCl to produce aluminium chloride and water. Reaction takes place, therefore this shows that aluminium is basic in nature because it is reacting with an acid. Similarly, aluminium oxide reacts with sodium hydroxide, which is a base, to form NaAlO2, which is sodium aluminate and water. This shows that aluminium oxide is acidic in nature because it is reacting with the base. So these two reactions
signify the amphoteric nature of aluminium. Now also some metal oxides can form alkali. We already know कि जो bases water में dissolve हो जाते हैं वो alkalis कहलाते हैं. That means metallic oxides are basic in general. तो ये bases अगर water में dissolve हो जाते हैं तो वो alkalis कहलाते हैं. Usually metal oxides water में soluble नहीं होते, but ऐसे metal oxides जो water में soluble होते हैं उनको हम alkali कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली. ऑल्सो ये जो अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी डिफर करती है. कोई बहुत ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कोई डिलेड रिएक्शन शो करता है. ऑन दिस बेसिस सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव. सोडियम एंड पोटेशियम एयर के साथ इस तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दैट दे कैन इवन कैच फायर. इसीलिए सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ताकि एयर या ऑक्सीजन के साथ उनका सप्लाई या कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो जाए. नेक्स्ट एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड लेड. These are also reactive metals but reactivity is less than sodium and potassium. ये metals usually ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की कोटिंग बनाते हैं अपने ऊपर और ये जो ऑक्साइड की कोटिंग होती है ये फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करती है. फर्दर रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विद ऑक्सीजन इज हेंस प्रिवेंटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ओवर दीज मेटल्स. नेक्स्ट इज आयरन एंड कॉपर. यूजुअली आयरन जो होता है दैट इट कैन नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लेकिन अगर हम उसको हीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स को हीट करने से फाइनली वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस शोज़ कि इनको हाई टेम्परेचर्स पर बोथ आयरन एंड कॉपर हाई टेम्परेचर्स पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. नाउ लास्ट इज गोल्ड एंड कॉपर. Now last is silver and gold. So silver and gold least reactive होते हैं और even high temperatures पर भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं. यही रीज़न है कि सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी पीसेस को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ होते हैं क्योंकि ज्वेलरी पीसेस एयर में एक्सपोज्ड होते हैं और अगर ये रिएक्टिव होते तो मेटल या ज्वेलरी कोरोड हो जाते. तो दैट्स वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी मटेरियल्स. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. यूजुअली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. नाउ दीज मेटल ऑक्साइड्स कैन फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. तो यूजुअली ये 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं जिसमें पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके फाइनली मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. इस 2 स्टेप रिएक्शन को यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन से डिनोट किया गया है. इवन इन NCERT सिंगल स्टेप रिएक्शंस इंडिकेट किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड विद एनर्जी. हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड. ये जो रिएक्शन है यहाँ पर सोडियम का और इवन पोटेशियम का, बिकॉज ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं तो यहाँ पर जो हीट जनरेट होती है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और जो हीट जनरेट होती है इट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर. तो जब भी हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें फायर भी हो सकती है बिकॉज हीट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस फायर. और ये कोल्ड टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक हो सकता है. दिस शोज हाउ सोडियम and potassium are very much reactive with water. Now calcium can react with water at normal temperature and in this case you see that heat is not evolved. So calcium is little less reactive than sodium and potassium. Similarly magnesium reacts with water but in this case magnesium reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. तो आप देख सकते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर सकता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है. तो ये एक तरीके से डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है मेटल्स की. इन दिस केस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम देखा जाता है कि फ्लोट करने लगते हैं सॉल्यूशन पे क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसके बबल्स इन मेटल्स पर स्टिक कर जाते हैं जिनकी वजह से वो फ्लोट करने लगते हैं.
नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम एंड आयरन। एल्यूमिनियम एंड आयरन हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि इनको और ज़्यादा हीट की ज़रूरत है एंड तब वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स फॉर वाटर, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम एंड देन आयरन एंड aluminium. Finally, we have to study about reaction of metals with acids. Metals acids के साथ react करते हैं to form salt and hydrogen gas. A simple example is if zinc reacts with hydrochloric acid, it will form zinc chloride and release of hydrogen gas is seen. Now, there is one thing to study about this reaction, that metals when react with nitric acid that is HNO3, तो इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, यानी कि अगर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या कोई भी एसिड है तो मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड है HNO3 तो उस केस में हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी, क्योंकि HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है रिएक्शन में वो इमीडिएटली HNO3 की वजह से वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो H2 is oxidized to water और HNO3 itself gets reduced into oxides of nitrogen, जैसे कि N2O, NO, NO2 और इस तरीके के ऑक्साइड्स। इसीलिए हाइड्रोजन गैस नेट इवॉल्व नहीं होती इस रिएक्शन में। Now we have to learn about aqua regia. एक्वा रिजिया एक मिक्सचर है दो एसिड्स का, दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब ये जो दो एसिड्स हैं ये 3:1 की रेशियो में जब मिक्स किए जाते हैं तो दे फॉर्म एक्वा रिजिया। ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है जो हार्डेस्ट मेटल्स जैसे कि गोल्ड जो ईजिली सोल्यूबल नहीं होता उनको भी डिजॉल्व कर लेता है एंड इट इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर एंड यूजुअली ज्वेलर्स इसको यूज़ करते हैं to dissolve gold pieces to make new ornaments and jewelry. Now finally reaction of metals with metal salts. हमने लोअर क्लासेस में भी देखा है कि एक मेटल को जब हम दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो मेटल उस मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, दैट मेटल A plus salt solution of metal B will give metal B and salt solution of A। तो यहाँ पर A ने B को डिस्प्लेस कर लिया है। जैसे कि इसका एक बहुत ही मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो ये कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है उसमें हम आयरन नेल डिप करते हैं तो फाइनली हमें ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है और आयरन नेल जो होता है उस पर ब्राउनिश कलर की कोटिंग आ जाती है एंड द रिएक्शन गोज लाइक दिस, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये कॉपर सल्फेट ब्लू होता है एंड आयरन सल्फेट ग्रीन होता है और ये जो कॉपर यहाँ पर रिलीज होता है यही वो ब्राउन डिपॉजिट है जो हमें आयरन नेल पर नजर आता है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो अकर्स इन मेटल्स एंड इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो सकता है जब इस केस में मेटल A ज़्यादा रिएक्टिव हो देन मेटल B, यानी कि जो मेटल हम सॉलिड फॉर्म में डाल रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए उस मेटल से जिसका वो सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो केमिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक सीरीज प्रिपेयर की गई है वेयर मेटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इस सीरीज को ही हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जो NCERT में भी दी हुई है और इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू जज कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन फीजिबल है या नहीं। इसके लिए हम एक एक्रोनिम लर्न कर सकते हैं। द एक्रोनिम गोज लाइक दिस, Please stop calling me a zebra. I like her calling me smart guy. अब इस एक्रोनिम में P stands for potassium, S for sodium, C for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Z for zinc, I for iron, L for lead, H for hydrogen, C for copper, M for mercury, S for silver and G for gold। तो सिंपली एक एक्रोनिम को लर्न करके हम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक दिस यू कैन रेफर टू आवर बुक ऑफ DNA एजुकेशन की पॉइंट साइंस क्लास 10th। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।